Now we are starting today with a chapter called calorimetry. So you will see that in this chapter there are both the words. One is the calorimeter and calorimetry. Calorimeter is an instrument. Calorimeter is the instrument which we use during the experiment, okay? And calorimetry is a process. It is a process of measuring heat, and for measuring heat we use a calorimeter. Okay, so we are going to use, all in all, I like to tell you all that this chapter is in relation with heat. All right, now you already have studied heat right from your 6th standard. What is heat? So it is a form of energy. So light is also a form of energy, sound is also a form of energy. Light is a form of energy which produces a sensation of sight, your vision. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing, whereas heat produces a sensation of hotness and coldness. You start with a calorimeter. Calorimeter is an instrument used to measure heat, and calorimetry, name of this chapter, is a process of measuring a heat. So in a laboratory, you take a calorimeter, you take hot object, you take cold object, you take water, and you do your experiment and you calculate the amount of heat. So that procedure, entire procedure is called calorimetry. So what we know about heat? Heat is a form of energy, and like all the other form of energy, it will give you some kind of sensation. So this heat gives a sensation of hotness and coldness. अच्छा, एग्जाम में अगर पूछे आप लोगों को कि what is heat, please don't write this definition. Okay, what you have to write, I will tell you, क्योंकि ये बचपन, this is not wrong. Okay, this is absolutely fine. But as I told you, you write this definition in your 5th or 6th standard, or maybe maximum up to 8th standard. Now you have to write something in more detail. Okay, यही लिखना है लेकिन थोड़ा और अलग से लिखना है. And we are going to discuss about that. Now what you will write? Heat is total internal energy. So what is a heat? Heat is a total internal energy. Sir, what total internal energy? So to understand this definition, you have to first understand the molecular model. Suppose if you take any solid or liquid or a gas, let us say this is a container. हाँ, इसमें क्या है? Molecules है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, there are 10 molecules. Count करके लिए हम लोगों ने 10 molecules, right? There are 10 molecules. Okay, ये solid के molecules हो सकते हैं, liquid के हो सकते हैं या gas के हो सकते हैं. These are molecules. They are in a motion. Do you agree? They have a force of attraction between them. They have intermolecular spaces. अगर solid होगा तो force of attraction is more, intermolecular space is less. Gas होगा तो intermolecular space is more and force of attraction is less. These molecules are continuously in a motion. अगर solid होंगे तो this motion is very less. They just vibrate about their mean position. Okay, if fluid होगा, that is liquid and gas, then it flows, right? And अगर ये liquid है तो ये flow करता है, but gas होगा तो ये flow जो होगा वो maximum होगा. It will occupy the entire volume available for it. Gas take the space, entire space available, तो ये ज़्यादा move करेगा, right? So whether a solid particle or a gaseous particle or a liquid particle, it is in a random motion. अगर motion में है तो इसके पास kinetic energy होगा. Do you agree? In our book it is written as this: energy and K for kinetic energy. And because of position there is a intermolecular force of attraction. तो ये kinetic energy solid में कम होगा और गैसेस में जो होगा वो ज़्यादा होगा. ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज पोजीशन, एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजीशन. सो इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. इट हैज़ बोथ काइंड ऑफ एनर्जी. सो दिस टोटल एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इज कॉल्ड द हीट एनर्जी, इंटरनल हीट एनर्जी. Is it clear? We think in terms of a molecular model. So this particle, solid, liquid or gaseous particle, okay, they have kinetic energy as well as potential energy. So sum of this energy is called the heat energy. Clear? Heat is a form of energy which produces a sensation of hotness or coldness. Is it wrong? Answer is no. It is absolutely correct. But that is a very amateur kind of definition. Now you are in 10th standard, so you should
यू टेल दिस। इसमें और एक सेंटेंस ऐड किया इस डेफिनेशन में, दैट इज फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। So your heat का definition will be made up of two parts. This part total energy वाला, और दूसरा suppose there are two object. One is the hot object जो मैंने red color से बनाया, और दूसरा cold object which I am drawing with a blue color. Okay. So hot body and cold body they are kept in close contact with one another. So सोचो चलो ये solid है, उसको क्या किया, touch करके रखा. Okay. Hot object का temperature let us take how much 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड का टेम्परेचर लेते हैं हम लोग हाउ मच 20 डिग्री सेल्सियस। व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या और ज़्यादा हॉट होगा क्या? नाउ दिस इज कॉमन सेंस, वी ऑल नो दिस। ओके, ये क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो डेफिनेशन में from that body which is at a higher temperature to that body which is at a lower temperature, and finally after some time there will be exchange of heat. Hot object will lose the heat, cold object will gain the heat, and finally an equilibrium will be obtained. Equilibrium मतलब दोनों का जो है वो सेम होगा, मे बी समवेयर दिस स्टॉप। ओके, बाद में क्या होगा, एक टाइम आएगा कि इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, 20 का बन जाएगा 30, 40, 50, और 110 विल स्टार्ट losing the heat. Okay, 110 से 100, 90, 80, and maybe again this entire example is hypothetical, this is just a fragment of imagination. तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस पर जब दोनों आ जाएगा, ओके, बोथ आर एट इक्विलिब्रियम 60 डिग्री। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ हीट विल स्टॉप। राइट, आर यू गेटिंग इट? ये दो सेंटेंस से जो है हमारा डेफिनेशन बना हीट का। इज इट क्लियर? लेट अस से K1 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, K2 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। लाइकवाइज ये 10 ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, उसका एवरेज निकाला मैंने। ओके, ये एवरेज निकाला काइनेटिक एनर्जी का, एवरेज ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। डू यू नो इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द एवरेज? इफ यू टेक आउट द एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड? एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द टेम्परेचर। नंबर तो इतना कम नहीं होगा, जनरली देर आर सो मेनी, ओके, मिलियंस ट्रिलियंस में होता है। ओके, सो इफ यू गो अप टू n टर्म्स, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, n। एवरेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। यू कैन डिवाइड दिस चैप्टर इनटू टू। हाफ जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, दैट इज टेम्परेचर से। एंड डू यू नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन आई से कि बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी है, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या डिसाइड करता है? जैसा काइनेटिक एनर्जी डिसाइड्स द टेम्परेचर, पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करता है उस बॉडी का स्टेट। वी नो ना 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये स्टेट डिसाइड होगा। ओके, हमारा जो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट है, ये दिस चैप्टर वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो लेटेंट हीट वाला जो है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इज इट क्लियर? ये सारा चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इफ यू डोंट नो ऑल दिस, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। नाउ टेल मी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट। एनर्जी का ऐसा यूनिट इज जूल्स, राइट? एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। हीट का ऐसा यूनिट क्या होगा? हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हीट का भी ऐसा यूनिट जूल होगा, राइट? बट वी ऑल नो दैट कि in our day to day life the units which we use, those are most of the time conventional unit which is convenient for us. So generally, okay, generally we calculate a heat in terms of calories. Any idea? 1 calorie is equal to how many joules? Any unit other than the SI unit, you have to give a relation with its SI unit. 4.186 joule. 1 calorie is equal to 4.186 joules, and approximately, as some of the students told me this, okay, it is approximately equal to 4.2 joules. Can you tell me how much is 1 joule equal to in terms of calories? बस ये उल्टा हो जाता है, 2-4 हो जाता है, okay? And कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ यू वांट जूल इनटू कैलोरी, तो 1 डिवाइड बाय 4.2. व्हेन 1 इज डिवाइडेड इनटू 4.2 पार्ट्स, तो ऑब्वियसली दिस आंसर इज लेस देन 1, सो आंसर इज 0.24 कैलोरीज. You cannot separate physics and maths, okay? They are interlinked.
हाँ, ये दोनों आपको याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं यूनिट से रिलेटेड। अच्छा, लेट अस डिफाइन कैलोरी नाउ। एनी आइडिया व्हाट 1 कैलोरी इज? 1 कैलोरी is defined as heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. From 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. Will you remember this? So whenever you do practicals, हाँ, या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो you keep a standard conditions. तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगा कि इनिशियल टेम्परेचर वॉज 14.5 डिग्री सेल्सियस, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया था। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस से। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर, व्हाट मास ऑफ वाटर? एग्जैक्टली 1 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इज इट। कैन यू टेल मी, यही सेम स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए ओके हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट वाज रिक्वायर्ड? यही ना, 4.2 जूल्स, बिकॉज 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स। सो 4.2 जूल्स will be required to raise 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. So what is 1 kilocalorie? So 1 kilocalorie is the heat required to raise a temperature of 1 kg of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. Okay, only one change I have done, that is 1 gram I have converted into 1 kg. So calorie becomes a kilocalorie. Sir, so in this case 4,200 joules will be required. Yes, ये पूछा गया था, the question which you asked ना, वो एग्जाम में पूछा था। So you can, to be very precise, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4186, but this was the expected answer. अगर आप लोग ये लिखोगे तो भी चलेगा, otherwise 4200 joules of heat is required to increase 1 kg of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. Okay, just don't read it. सिर्फ इसको क्या करो, पढ़ो मत, ये मत करो, ये सब चीज़ों को फील करो, इनको फील करो, ताकि एग्जाम में कुछ भी उल्टा पुल्टा करके उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन, ओके, एप्लीकेशन बेस्ड सिचुएशन में डालकर, तो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। हीट कैपेसिटी, ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कितना भी हो सकता है, राइट? इसका हीट कैपेसिटी, सो व्हेन आई हीट दिस, ओके, इसको मैंने क्या किया, बर्नर से क्या किया, हीट, आई हैव पास्ड ऑन अ हीट, तो हीट कंज्यूम्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके, टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज टेम्परेचर by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius is called heat capacity, is called heat capacity. Are you getting it? क्या फील कर सकते हो आप लोग, जरा ध्यान दो, ओके, ये क्या है सर, नहीं समझ में आ रहा, ओके, फील नहीं आ रहा है, फील आना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, सो दैट यू कैन आंसर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सर कुछ भी चलेगा, छोटा चलेगा, बड़ा चलेगा, आंसर इज यस। इफ आई टेक अ कप ऑफ वाटर, ओके, एक कप में वाटर लिया, एक बकेट में वाटर लिया, वेयर मास विल बी मोर? इफ आई टेक अ कप ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, राइट, 1 डिग्री सेल्सियस से। और इफ आई हैव अ बकेट ऑफ वाटर, ओके, बकेट में ज़्यादा पानी है, ओके, बकेट में ज़्यादा पानी है, उसका टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। विल दे बोथ absorb same amount of heat? Will they consume same amount of heat? Definitely no. कौन ज़्यादा हीट कंज्यूम करेगा? बकेट। जरा ध्यान से सुनो, इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करें। कीवर्ड होता है, कीवर्ड नहीं मिला, टीचर इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क। तुम्हारा स्टोरी नहीं सुनना है उनको, तुम्हारा लैंग्वेज नहीं देखना है, व्हाट दे वांट इज द कीवर्ड। सो बकेट का हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, हीट कंज्यूम्ड टू रेज अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली अ कप ऑफ वाटर विल कंज्यूम लेस हीट टू इंक्रीज अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है बकेट ऑफ वाटर विल कंज्यूम मोर हीट टू इंक्रीज अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट ना? तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा किसका है? दोनों भी वाटर है, मटीरियल सेम है, बट हीट कैपेसिटी जो है बकेट का ज़्यादा है। क्लियर? क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब एग्जाम में देखो गिव रीजन है, 2 वर्ड है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 2 टेक्निकल वर्ड्स, one is heat capacity and another one is the specific heat capacity। अभी मैंने specific heat capacity के बारे में कुछ नहीं बताया। when you write a reason, students are always confused कि heat capacity के ऊपर मेरा आंसर है कि
कि स्पेसिफिक कैपेसिटी के ऊपर आंसर है। नाउ दिस इज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है क्या होता है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। नाउ गिव रीजन, लिसन टू द गिव रीजन केयरफुली, ओके। द पैन यूज्ड फॉर कुकिंग, उसका बेस जो है वो थिक किया, ओके। पैन जो है कुकिंग का, उसका बेस जो है दैट इज थिकर, वाई, दिस इज अ गिव रीजन, ओके। गूगल करके देखो, ये बोर्ड में पूछा गया, ओके, चेंज कर करके। या तो ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल आयन, उसका बेस जो होता है जिससे आप लोग कपड़े को प्रेस करते हो, ओके, इलेक्ट्रिकल आयन, उसका बेस थिक होता है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कैलोरीमीटर, मैंने बताया ना कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट इन अ लेबोरेटरी। तो वो कॉपर कैलोरीमीटर जो होता है, उसका जो मटेरियल होता है, उसका कॉपर जो होता है वो बहुत पतला होता है। ये गिव रीजन आता है, ओके, ये बहुत पतला होता है, वाई। तो याद रखो, देखो, सुनो यहाँ, सुनो व्हाट यू हैव टू राइट। If I am correcting a paper, I want only one word, that is heat capacity. Heat capacity. For all three give reasons, heat capacity is a keyword. Specific capacity लिख दिया, wrong, 0. Why? I'll tell you. Subjective paper, okay? अब एक फ्राइंग पैन है, या तो ये इलेक्ट्रिकल आयन है, उसका अगर बेस थिन होगा तो उसका हीट कैपेसिटी कम हो जाएगा। इट कैन एब्जॉर्ब, मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, कप ऑफ वाटर है ना, बकेट ऑफ वाटर, बकेट ऑफ वाटर क्या करता है, ज़्यादा हीट ले लेता है, राइट। तो इफ फ्राइंग पैन का जो है वो अगर बेस थिक बनाएंगे, थिक इंस्टेड ऑफ थिन, थिक बनाएंगे, ओके, इलेक्ट्रिकल आयन का बेस अगर थिक बनाएंगे तो वो ज़्यादा हीट लेगा, जस्ट लाइक अ बकेट ऑफ वाटर, राइट, वो ज़्यादा हीट कंज्यूम करेगा। और अगर पैन में, फ्राइंग पैन में अगर जो ज़्यादा हीट है तो मेरा फूड विल बी कुक्ड प्रॉपरली। ये फूड विल बी कुक्ड प्रॉपरली ना, वो कुछ भी अपने वर्ड में लिखो, वो उसके ऊपर मार्क्स रॉन्ग या राइट नहीं हो जाता, इसके ऊपर राइट या रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और मे बी यू कैन गो एड एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि फूड विल बी हॉट फॉर मोर टाइम इन द वेसल और अ पैन विथ अ थिक विथ थिक बेस, राइट ना। या इलेक्ट्रिकल आयन जिसका बेस थिक होगा वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, यू कैन प्रेस मोर क्लोथ्स, राइट। थिन होगा तो उसका हीट कैपेसिटी कम है, हीट कैपेसिटी कम है, सो इट विल बी हॉट फॉर शॉर्ट टाइम, कम कपड़े प्रेस कर सकते हो। और इसका उल्टा कॉन्सेप्ट, कॉपर कैलोरीमीटर में क्या करना है, मुझे हीट को मेजर करना है, तो आई वॉन्ट लेस अमाउंट ऑफ हीट टू बी वेस्टेड। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि कैलोरीमीटर जो है वो कॉपर का बना हुआ है, कैलोरीमीटर जो है वो कॉपर का बना हुआ है, ओके, वो भी हीट कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट विल ऑल्सो कंज्यूम हीट। और अगर जितना हीट वेस्ट हो जाएगा, माई रीडिंग्स विल नॉट बी एक्यूरेट। तो यहाँ पूछा है कि वाई थिन कॉपर इज यूज्ड इन कैलोरीमीटर, क्योंकि उसका हीट कैपेसिटी कम होगा, इट विल कंज्यूम लेस हीट एंड माई रीडिंग्स विल बी एक्यूरेट, क्योंकि मैं कैलोरीमेट्री, आई एम मेजरिंग हीट। इसने क्या किया, समझ में आएगी नहीं, मेरा एक दुकान है मिठाई का दुकान, और मैंने एक सैलरी पर एक लड़के को रखा मिठाई बेचने के लिए, अगर वही पूरा खा रहा है, वही बहुत खा रहा है मिठाई, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो बेटर व्हाट आई विल डू कि मैं वो डायबिटीज़ पेशेंट को रखेगा जिसको खाना ही नहीं है मीठा, सो ही विल नॉट ईट, तो मेरा वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? हैव आई गिवन यू राइट एग्जाम्पल? हाँ, तो थिकनेस के ऊपर, थिकनेस थिननेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कीवर्ड इज हीट कैपेसिटी एंड नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आप लोग मुझे बताओगे, क्या इससे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाओगे आप लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का स्मॉल सी, कैपिटल सी और डैश, कैपिटल सी और डैश, ओके, इज अ फॉर हीट कैपेसिटी। क्या बता सकते हो इससे, कुछ फॉर्मूला बना सकते हो? अमाउंट ऑफ हीट, हीट का सिंबल पता है आप लोगों को, हीट का सिंबल क्या है? एनी आइडिया? तो हीट का सिंबल है कैपिटल क्यू, हीट एनर्जी का सिंबल है कैपिटल क्यू। हाँ, ये क्यू चार्ज के लिए भी है, करेक्ट ना, क्यू चार्ज के लिए भी है इलेक्ट्रिसिटी में, ओके। तो बट यार ये हीट के लिए, हाँ, हीट के लिए। सो क्वांटिटी ऑफ हीट, ओके, कंज्यूम्ड और रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, तो डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो गया हीट कैपेसिटी, ओके। ये यही से आया, टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, टू चेंज द टेम्परेचर। डेल्टा मतलब चेंज,
ओके वेन वी पुट अ डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अगर रेज हो गया समथिंग, वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे हम लोग देखते हैं ना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू। और अगर टेम्परेचर फॉल हो गया है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा था इनिशियली, फॉल हो गया बाद में कम है, सो दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल। ओके उसके बारे में बात करेंगे, बट दिस इज अ फॉर्मूला। इज इट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? कैपिटल C एंड डैश हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक वर्ड आता तो क्या हो जाता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड स्पेसिफिक? सेकेंड वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्मॉल सी होता है, सिंबल क्या होता है? स्मॉल सी। ओके सेम डेफिनेशन है यहाँ, क्या है? हीट रिक्वायर्ड, हीट कंज्यूम्ड, हीट रिक्वायर्ड और हीट कंज्यूम्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 unit mass. This 1 unit can be 1 gram also. Okay, 1 unit mass of object, ऑब्जेक्ट बाई 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? मैंने वहाँ क्या बोला था? टेक अ कप ऑफ वाटर और टेक अ बकेट ऑफ वाटर, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ओके दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। कम वाटर लो, ओके मास इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ क्या है? मास सेम लेना है। इफ आई टेक 1 cup of water and I don't take a bucket, again I take a 1 cup of water, तो क्या सेम होगा? ये हीट कैपेसिटी, इसका हीट कैपेसिटी सेम होगा क्योंकि मास सेम है। व्हेन मास इज इन्वॉल्व तो वर्ड ऐड हो जाता है स्पेसिफिक। मास इन्वॉल्व होगा तो वर्ड ऐड हो जाता है स्पेसिफिक। तो व्हाट विल बी फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इट इज Q अपॉन मास इज इन्वॉल्व इनटू डेल्टा टी। ओके यही से एक हीट का फॉर्मूला भी आ जाता है, हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ये बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग, mc डेल्टा टी। अभी इसी के ऊपर हमारा अगला टॉपिक है, अगला ये है कॉन्सेप्ट है, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच हीट डिपेंड। ओके वो फैक्टर के बारे में बाद में बात करते, पहले इसके बारे में देखते हैं। ओके इज इट फाइन? अच्छा ये स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट के वजह से क्या हो गया मालूम है? वी कैन हैव अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1। इसका यूनिट मैं नहीं बता रहा, अच्छा यूनिट भी बता देता हूँ, चलो इसका यूनिट भी बता देता हूँ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? चलो हम लोग ऐसा ही लेते हैं, पहले ऐसा ही लेते हैं बाद में दूसरा लेते हैं। जूल। व्हाट इज यूनिट? ऐसा यूनिट ऑफ मास केजी। एंड व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन। तो इसका यूनिट जो है, ओके इसका यूनिट जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी का, स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन। ओके कैन यू टेल मी हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? व्हाट इज यूनिट हियर? देखो फॉर्मूला देखो एंड टेल मी। कैन आई राइट जूल पर केल्विन? बस इतना ही दो, नो केजी, क्योंकि मास इन्वॉल्व नहीं है हीट कैपेसिटी में। अब क्या हो गया मालूम है? स्पेसिफिक में ना हमको एक वैल्यू मिल जाता है, दिस इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ओके दिस इज नॉट अ ऐसा यूनिट, लेकिन अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना है, मतलब इफ यू टेक, जरा ध्यान से देखो, इफ यू टेक 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इफ यू टेक 1 ग्राम ऑफ वाटर and if you wanted to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, so it will consume 1 calorie। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो है ना वाटर का हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज मैक्सिमम। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, दैट ओके यही रिस्पॉन्सिबल है। ओके अगर आप लोग टेबल देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, ये अगर आप लोग टेबल देखोगे तो यू विल सी सबसे ज़्यादा इसका है 1 वाला। ओके मतलब इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ जूल, इज इट 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसा यूनिट में। दिस इज वेरी वेरी हाई। बहुत सारा वैल्यू दिया है टेक्स्ट बुक में, बट आप लोगों को 2 ही याद रखना है। कौन सा 2 याद रखेंगे? एक वाटर का याद रखो और दूसरा कॉपर का याद रखो, बिकॉज वाटर और कॉपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ओके डू यू वांट टू नो कि कॉपर का क्या है स्पेसिफिक कैपेसिटी, सी का वैल्यू क्या है? तो कॉपर का वैल्यू इज 0.095। डू यू अंडरस्टैंड कितना कम है ये?
नॉट इवन 0.1 ना, ओके वो तो पूरा का पूरा 1 है, बहुत ज़्यादा है। तो कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी इज़ वेरी लेस। अगर हम लोग इसको केल्विन्स में ऐसा यूनिट में देखेंगे कॉपर का, इट इज़, अभी इससे शायद आप लोगों को प्रॉपर आइडिया आ जाएगा, दिस इज 399 जूल पर केजी पर केल्विन, राइट। अभी इसके ऊपर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ओके। यहाँ पर कीवर्ड आपके लिए होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कीवर्ड विल बी दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, ओके। आर यू गेटिंग इट? कैन यू कंपेयर 4200 किधर और नॉट इवन 400? सो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर आप लोग पूरा लिस्ट देखोगे तो सबसे कम लेड का है, लेड का 0.031, बट लेड विड वो सब नहीं पूछेंगे हमको। हमारे एग्जाम में जो है वाटर और कॉपर से रिलेटेड ही पूछेंगे। इफ़ पॉसिबल लर्न दिस वैल्यूज। वाटर का तो ईजी है 1 एंड 4200, एक कैलोरीज में, ओके, और एक ऐसा यूनिट में, करेक्ट। सिर्फ कॉपर का याद रखो 0.095 एंड दिस 399, राइट। ये दोनों याद रखो। डू यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब मालूम है आप लोगों को? इसका डे टू डे लाइफ में इसका एप्लीकेशन या इसका इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब क्या है कि वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, और 1 kg ऑफ वाटर, इस वैल्यू से पता चलेगा कि वाटर टेक दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। समझ में आया कि नहीं? और कॉपर क्या करता है? इतना ही लेता है। कैन आई से इन सिंपल टर्म्स, कैन आई से पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता है व्हेन यू कंपेयर इट विथ कॉपर। कॉपर को देखो ना, 399 जूल मिल गया, इंक्रीज हो गया, 399 जूल हटा दिया, हो गया, कम हो गया। सो दिस विल बी फास्टर, ये जल्दी हीट गेन करेगा, जल्दी हीट लूज करेगा, बट वाटर नहीं। उससे क्या 12 टाइम्स, हाउ मच, 4 इन 11 to 12 टाइम्स जो है ज़्यादा लगेगा। अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम्स से ज़्यादा हीट चाहिए फॉर वाटर टू गेट हॉट एंड टू गेट कोल्ड। अब ये कॉपर इधर वाला और ये वाला कॉपर, इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इफ़ आई एम चेकिंग अ पेपर, मैं सिर्फ देखूंगा इस गिव रीजन में मुझे हीट कैपेसिटी मिला क्या, और क्या इसमें जो है मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिला क्या, दैट इज़ अ कीवर्ड। बाकी का डेकोरेशन इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नोट्स में देखोगे आप लोग, ये वाला वर्ड मैंने इटैलिसाइज करके देखा है, सो दैट यू कैन फोकस मोर ऑन दैट वर्ड, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर हीट कैपेसिटी, उसमें मास इंपॉर्टेंट नहीं है। थिकर द बेटर, ज़्यादा हीट लेगा, ओके। थिनर, ओके। तो यहाँ मतलब मटेरियल वही है, कॉपर ही है, तीनों में मटेरियल कॉपर ही है। हम लोगों ने सेम मटेरियल से कंपेयर किया, बट नाउ वी आर कंपेयरिंग वन मटेरियल विद द अदर मटेरियल, ओके। अब यहाँ देखो गिव रीजन, ओके। नाउ व्हाट इज अ गिव रीजन? गिव रीजन एग्जाम में आता है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लेट अस से ये सी शोर है, water and this is land, okay, this is land and water. Can I say sand and water? रिदमिक है, land and water. किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? ओके, वाई एम आई यूजिंग अ वर्ड स्पेसिफिक हीट? बिकॉज आई एम कंपेयरिंग सैंड विथ वाटर, बराबर ना। आई एम नॉट कंपेयरिंग वाटर विथ वाटर। कम वाटर और ज़्यादा वाटर को कंपेयर करूंगा तो दैट इज़ हीट कैपेसिटी। आर यू गेटिंग इट? आई एम कंपेयरिंग सैंड टू अ वाटर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट। अच्छा, ड्यूरिंग डे टाइम, शुरू कहाँ से करते हैं? डे से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट विल बी मोर हॉटर, व्हाट विल बिकम मोर हॉटर? एक चीज़ फिक्स कर लो कि वाटर का सबसे ज़्यादा, जब टेबल हम लोगों ने पढ़ा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वाटर वॉज एट द बॉटम, वाटर का हीट कैपेसिटी वॉज एट द बॉटम, मैक्सिमम वाटर है, ओके। हमारे सिलेबस में इसके आगे का नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर। अगर सन भी है, ओके, इवन इफ इन अ हॉट आफ्टरनून सन, ओके, सन इज शाइनिंग ब्राइट, राइट, जल्दी गर्म कौन होगा? लैंड और वाटर। लैंड ना, क्योंकि लैंड वाटर का सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी,
तो बहुत हीट लेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस इट विल कंज्यूम 5 टाइम्स हीट एज कंपेयर टू अ सैंड। तो ये हॉट है और ये कोल्ड है, राइट, ये हॉट है और ये कोल्ड है, राइट। तो गैस है, एयर इज व्हाट, गैस, ब्रीज मतलब क्या, एयर इज मोर टेम्परेचर, हॉट वाला जो है एक्सपांड हो जाता है, डेंसिटी लेस हो जाता है, ओके। सो ब्रीज विल बी फ्रॉम ओके, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, ओके, यहाँ डेंसर है और यहाँ रेयरर है, ओके। सो ब्रीज विल बी इन दिस डायरेक्शन। आर यू कन्विंस्ड? Sir, it should be from land to sea, right? अरे नहीं रे, दिन में तो सी से, एक बात याद रखो, दिन में जो है समुंदर से हवा आता है। अब नाइट में क्या हो गया देखो, ओके, सन चले गया, डार्क है, अब क्या हो गया, कूल होना शुरू हो गया, ओके। अब मुझे बताओ जल्दी कूल कौन होगा, जल्दी कूल कौन होगा, सैंड कि दोनों हॉट हो गए, ओके, दिन भर सन में जो है दोनों हॉट हो गए, वाटर इज हॉट, ओके, रात में जो है वाटर जो है वो हॉट है, वो जल्दी कूल नहीं होगा वाटर, क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स मोर। बट सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है, इसका टेम्परेचर जल्दी से फॉल करेगा, सो इट इज़ कोल्ड, सो इट विल बी अ लैंड ब्रीज एट नाइट, ओके, एट नाइट इट विल बी अ लैंड ब्रीज। हॉटर है तो डेंसिटी इज लेस, और यहाँ डेंसिटी हैवी है, ओके, इट इज़ हैवी हियर, ओके, मोर डेंस हियर एंड रेयर देयर, तो ये सी ब्रीज होगा। क्लियर? ये एक गिव रीजन। Yes, sir. एंड और एक चीज़ देखो, वाटर और सैंड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वाटर और सैंड को, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो कीवर्ड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थिकर और थिनर, थिकर बेस more material, thinner base less material, but material is same. आयन, ओके, आयन, कॉपर, बेस में कॉपर है, मोर कॉपर लेस कॉपर, बट कॉपर ही है, तो हीट कैपेसिटी, क्योंकि मास अलग अलग है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक, मास सेम रखते हैं, देन वी कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड। इज इट ओके? आई एम श्योर कभी आप लोगों का सर दर्द किया होगा या कोल्ड हुआ होगा, सो यू यूज अ हॉट वाटर बैग विच इज कॉल्ड फोमेंटेशन वाटर बैग। देखा ना, ये वाटर बैग होता है ऐसा, आप पानी फील करते हैं एंड यू टेक दिस बिलो योर हेड और समथिंग, बहुत कोल्ड वगैरह हो गया, तो वाई डू वी यूज वाटर? तो सेम रीजन, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। टेक्स्ट बुक में टेबल है, वाटर सबसे नीचे, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दैट? तो एप्लीकेशन ये है कि वाटर धीरे धीरे गर्म होता है और एक बार गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सो इफ़ यू यूज़ अ हॉट वाटर, ओके, ये जल्दी कूल नहीं होगा, हेंस इट इज़ यूज्ड इन दी वाटर बैग्स, जिसको कहते हैं फोमेंटेशन बॉटल्स या ये फोमेंटेशन बैग्स। इज इट क्लियर? अगर आप लोगों ने कार को देखा है, कार को, ओके, तो कार के फ्रंट पोर्शन में ऐसे कुछ वाइसर्स होते हैं एयर पास होने के लिए। हैव यू सीन दिस? ये सामने से इधर हेडलाइट होता है, इधर हेडलाइट होता है, एंड देर इज सम वाइजर्स सो दैट एयर पासेस थ्रू दिस। ये कार तो देखा होगा आप लोगों ने, राइट? Yes, sir. हाँ, या ये विंडशील्ड वगैरह के सामने ये वाइजर्स होता है, इसके पीछे एक रेडिएटर होता है, ओके, जैसा एसी में होता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर वाटर फिल करते हैं, ओके, तो इसके अंदर वाटर ही फिल करते हैं, दूसरा क्यों नहीं? वाई? कि इसमें वाटर है और एयर जाता है वाइजर से, ओके, तो कूल पानी ये इंजन के आगे लगाते हैं, इंजन के आगे, इसके पीछे ही, रेडिएटर के पीछे जस्ट इंजन का वो पार्ट होता है जो ज़्यादा गर्म होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रेडिएटर, ओके, वो क्या करता है, इंजन को कूल रखता है, इंजन को क्या करता है, कूल रखता है, इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। अदरवाइज यू नो कि इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सो कार विल ब्रेक, देयर विल बी अ ब्रेक डाउन इन अ कार, ओके। तो इसमें वाटर यूज़ करते हैं, वाई? क्योंकि सेम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर। जितना भी मटेरियल दिया है टेक्स्ट बुक में, वाटर सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, नथिंग एब्जॉर्ब मोर हीट, तो वाटर एब्जॉर्ब लार्जर हीट। तो वाटर क्या करता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके, एंड इट विल कीप योर इंजन
more cooler as compared to any other liquid. Factors on which heat depends. Factors on which heat depend. हीट का फॉर्मूला क्या है, Q का फॉर्मूला क्या है, बताया था ना मैंने, M C डेल्टा T, M C एंड डेल्टा T. मालूम है ना कहाँ से आया था, स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला, ठीक है. So it depend upon three factor. Heat depend upon three factor. Can you tell me which is the first factor? Yes, definitely mass. Which is the second factor? Third, temperature. Okay, and ये कौन सा? This is Material. नहीं, material या specific heat capacity. Why material? डायरेक्टली मटेरियल, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है, लेड का अलग है, वाटर का अलग है, मर्क्यूरी का अलग है, सी वाटर का अलग है, आइस का अलग है. ओके, सो मटेरियल और स्पेसिफिक कैपेसिटी. ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिस ऑन व्हाट फैक्टर. जनरली दो पूछते, 2 फैक्टर्स दे आस्क. ठीक है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर. या लिखा है राइज इन टेम्परेचर आपके टेक्स्ट बुक में, बट राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है. ओके, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज ऑल्सो. बट हीट दे रहे हैं हम लोग, वी आर सप्लाइंग अ हीट, दैट मीन्स टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज. इज इट क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चलो लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं. आई शुड हैव डन दिस ऑन अ वाइट बोर्ड, बट यहाँ कर लेता हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, ओके, कैपिटल C डैश एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c, इनके बीच का रिलेशन. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर C स्पेसिफिक कैपेसिटी का? ओके, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर C डैश? Q अपॉन डेल्टा T. ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. चलेगा? अब मैं इसको यहाँ डालने का कोशिश करूँगा. तो C इज व्हाट? Q बाई डेल्टा T, दिस वैल्यू. ओके, is it capital C dash upon M? बराबर कि नहीं? Q from 1, this where do I get this from 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. ओके, C dash हीट कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर डेरिवेशन पूछा तो 2 मार्क के लिए, अगर सिर्फ डायरेक्टली रिलेशन पूछा तो दिस. एज पर डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी. ओके, इसमें ये भी बता देंगे हीट कैपेसिटी का सिंबल है कैपिटल C डैश. सो कैपिटल C डैश इज इक्वल टू Q हीट अपॉन डेल्टा T. इक्वेशन नंबर 1. नाउ एज पर डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज स्मॉल c is equal to Q upon M by delta T. I can split this as 1 upon M multiplied by Q upon delta T, which can be represented as 1 upon M into C dash. That is, small c is equal to C dash by M. Therefore, C dash is equal to M into C. बट डेरिवेशन पूछा तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, और बट मोस्टली रिलेशन पूछने का ज़्यादा चांस है. वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ऑल्सो बेस्ड अपॉन. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, हमारे बुक में इसको दिया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड दी ऑल्टरनेट नेम इज प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर. सबको ये नाम मालूम होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बट दे डोंट नो दिस नेम. और बराबर टीचर, आई विल टेल यू, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, 1 मार्क. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर? अदर नेम वाज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके, ये ऑलरेडी बताया मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल. ये है कि व्हेन यू प्लेस्ड हॉट ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ऑब्जेक्ट, अगर सॉलिड होगा तो यू कैन कीप इट इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर लिक्विड होगा तो व्हेन यू mix hot object with the cold object, so heat, who will lose the heat? When hot body is mixed or kept in contact with a cold body, heat energy passes from hot body to the cold body till both body attain the same temperature, Okay, what was 1 mark? कि ये डेफिनेशन लिखने के लिए 1 मार्क,
other name, this is also known as principle of calorimetry. Name of the chapter is calorimetry, principle of calorimetry. So देखो हर साल ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर करके पूछते, रिसाइकल करके. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये पूछते हैं. ओके, ये टिपिकल क्वेश्चन है. ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड? कैन यू टेल मी ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज this entire principle of calorimetry is based? So it is based on law of conservation of energy. Energy is neither created nor destroyed. It transformed from one object to the, it is transformed from one form to the another form. So heat is just transferred from hot body to the cold body. So law of conservation of energy. Is it clear? अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था. ये क्वेश्चन आया था, यू कैन सी 2017 में एक रिलेशन लिखने के लिए 3 मार्क्स था. इन फिजिक्स यू डोंट हैव 1 मार्क क्वेश्चन. हाँ, MCQ ही हो सकता है 1 मार्क का. बाकी ऑल दी क्वेश्चंस विल बी आइदर फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स. तो थोड़ा सब्जेक्टिव होगा. वाई स्टूडेंट स्कोर लेस मार्क इन सब्जेक्टिव पेपर? क्योंकि क्वेश्चन आंसर टाइप ज़्यादा आंसर होते हैं डिस्क्रिप्टिव, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम योर आंसर व्हेन टीचर चेक द पेपर दे वांट कीवर्ड. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कीवर्ड बताया आप लोगों को, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट Q1 is equal to heat gained by cold object Q2. हीट का फॉर्मूला है mc डेल्टा टी. न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग, mc डेल्टा टी. और यहाँ क्या हो जाएगा? mc डेल्टा टी. ओके, फॉर हॉट ऑब्जेक्ट मास इज m1, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज c1 एंड चेंज इन टेम्परेचर विल बी t1. यहाँ आएगा m2, c2 एंड t2. ये इक्वेशन था. हैव यू अंडरस्टूड दिस? जो बॉडी हीट लूज करता है उसके लिए टेम्परेचर होगा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा सा कंटाला मत करो, थोड़ा सा सोचो. और जो हीट गेन करता है उसका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. डू यू वांट एग्जाम्पल? जरा यहाँ ध्यान दो. हॉट बॉडी इज एट 90 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड कोल्ड बॉडी इज एट 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दोनों को मिक्स किया और दोनों का इक्विलिब्रियम आया. ओके, दिस लॉस्ट द हीट एंड दिस गेन द हीट. और इक्विलिब्रियम क्या था? 60 डिग्री सेल्सियस. ये था. कैन यू टेल मी, ये हॉट बॉडी ने, ये हॉट वाले बॉडी ने हाउ मच हीट इट हैज लॉस्ट? करेक्ट ना? 30 डिग्री सेल्सियस. कैसे किया आप लोगों ने? 90 माइनस 60, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल. ओके, हॉट बॉडी. ओके, इनिशियल हॉट बॉडी. ओके, ईयर इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल. क्या बताएंगे कोल्ड बॉडी ने कितना हीट गेन किया? अगेन 30. एम आई राइट? यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? 60 माइनस 30. ओके, इसका ये इनिशियल टेम्परेचर था और ये फाइनल टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल. दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल. हॉट के लिए क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल. और कोल्ड के लिए क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल. आर यू गेटिंग इट? अभी देखो, ये जो इक्वेशन टेक्स्ट बुक में दिया है वही मैंने यहाँ पर छापोफाई किया है. टीचर ने सिर्फ इनोवेशन किया. क्या किया? व्हाट टीचर इज सेइंग दैट फर्स्ट बॉडी, ओके, हॉट बॉडी जो है उसका मास, हॉट एंड कोल्ड. ओके, हॉट बॉडी का मास है m1, कोल्ड बॉडी का मास है m2. हॉट बॉडी का स्पेसिफिक कैपेसिटी है c1 और कोल्ड बॉडी का c2. इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2. ओके, दोनों को मिक्स किया एंड दे अटेंड एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विच इज T3. इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज T3. अब क्या ये इक्वेशन सेम होगा कि चेंज हो जाएगा? देखो, दिस इज फॉर श्योर m1 c1 m2 c2 ये तो सेम है. ओके, व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ टेम्परेचर? इसका इनिशियल टेम्परेचर T1, इसका इनिशियल टेम्परेचर T2, दोनों का फाइनल टेम्परेचर इज T3. सो व्हाट इज योर इक्वेशन? टाइप इन अ चैट बॉक्स. तो यहाँ क्या आएगा? T3 माइनस T1 की T1 माइनस T3. व्हाट? T3 minus T3. एंड हियर व्हाट यू विल गेट? व्हाट माइनस व्हाट? T3 minus T2. T3 माइनस T2. ये याद रहेगा ना, इनिशियल और फाइनल वाला. इसके ऊपर भी सम्स करना है हमको. डोंट वरी अबाउट सम्स. हम लोग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. ऑल सम्स आर इजी.